was like we need somebody to take care of all of these things, you know, music, dance और art बहुत वहाँ पे बहुत दिल से वो कराती हैं. Okay. So she needed somebody to take care of all of that, so I joined in as a coordinator. And that's what So I've been you're doing working there also. I'm working And you there. have your own thing. I जो have आप my जहाँ own पे classes, dance के हाँ. workshops बिल्कुल. और बहुत कुछ होता है वहाँ पे बैथ के नाम से, right? हाँ, Studio Okay. Beth, it's So called when did Studio you start that? Not very. It was what 2 years ago. जब Beth की अभी second birthday थी, just a few months ago. So it was just 2 years ago, and उससे पहले तो I wasn't even, you know, performing publicly. My Instagram was also private, and then, you know, one fine day I woke up and I said, ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा, ये तो I have to share my art with people. So I made my Instagram public, and I decided that मुझे एक जगह चाहिए थी सेफ जहाँ पे और लोग आ सकें और जो उनका जी चाहे वो करें. As long as it's not harming other people, I think people should be able to do what their heart tells them to do. So it's a very sweet, cozy little space. It's not that big, but you know, I've curated it with so much love. Every single piece there is, you know, मैंने दीवारें भी खुद पेंट की हैं एक दो तो हमने बहुत प्यार से बनाया है कि स्पेशली लड़कियों के लिए कोई जगह हो Safe जहाँ space पे हो. हाँ. That's so true. Yeah. अच्छा लेकिन मुझे बताएं आपने तो ग्रेजुएट करने के बाद काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो ये कहाँ से आया और कब आपको रियलाइज़ हुआ that oh I want to be a performing artist, you know, और मुझे डांस की फील्ड को परस्यू करना है and this is what I want to do, you know, because commercial theatre भी आपने नहीं किया, right? नहीं. So how did this happen? So I mean, I was always a performing artist. मैं आपको Yeah, जैसे बता but you रही हूँ never said that, you know, या ये था कि मैं ये बनूंगी. नहीं, ये तो नहीं सोचा That's what I'm था कि saying, मैं ये yeah. बनूंगी. और कभी honestly वो वहाँ आप कॉलेज में साइड पे कर रही थी ना? कॉलेज में तो किया ही नहीं. ये तो स्कूल तक था. उसके बाद और कॉलेज इज़ रियली हार्ड एंड आई कुडंट उस टाइम पे. I wanted to focus on what I was doing उस वक्त and I didn't do much. But right after college मेरा बस कुछ हुआ. मैं अपना थीसिस कर रही थी और मैंने सोचा कि मेरे जो सुपरवाइजर थे उन्होंने कहा कि you should do something on dance because I've seen you dance in class. स्टूडियो होता था ना बड़ा सा, तो हम वहाँ पे लगे रहते थे. कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई खेल खेल रहे हैं, तो वो देखते थे. He was like, you're good and it seems like you know a little bit about it. Might as well just make your thesis on it. And that's where I reconnected. I feel it was because of my teacher, Sir Nadeem, that I reconnected with my dance. और उन्होंने बड़ा पुश करके मैं चाहती थी मैं कुछ आसान सा कर लूँ और बस ऐसे ना. I know advertising की जॉब या हाँ, किसी प्रोडक्शन हाउस में that's what I would be thinking after doing नहीं, this. मैं थीसिस की बात कर रही हूँ कि मैं कुछ आसान सा कर लूँ, कोई simpler topic and then you just get it over with. But he was like, no, you will do something that you like because you have to work on this for, you know, a whole entire year. And the kind of focus issues that you have, I know you will not work on anything else. So then he pushed me and then I did, you know, उस प्रोसेस में मुझे लगता है उसने मुझे इतना इनगल्फ कर लिया पूरे प्रोसेस ने. मुझे इतना मज़ा आया वो सारा काम बनाते हुए. आई परफॉर्म फॉर माई थीसिस ऑल्सो कि आई वाज लाइक आई कांट गो बैक फ्रॉम दिस. इट वाज देयर इज़ अ हाई, राइट? परफॉर्मिंग फॉर अ लाइव ऑडियंस, इट विल टॉप any other feeling in the world for me. There is जो adrenaline होता है, जो आपको खुशी होती है, and then immediate applause is also it's insane. I can't tell you how insane it is. So वो आदत हो गई, लत लग गई ना उसके बाद कि नहीं ज़रूरत है इस चीज़ की. And then you know over the years I felt कि मैं तो कर पा रही थी बहुत आराम से, खुशी से, अपने दिल से जो भी. But I felt there were a lot of people around me that who had nowhere to go. जिनके पास तरीका नहीं था करने का. So then I was like कि ये खुद नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा हमारे लिए. That's when I created एक शो हमने करना था, सर्क सलाम. That was my first ever show that I उससे पहले मैंने डायरेक्ट किए थे but for other platforms, you know. If I work at another studio and then I make something for them, मैंने बना दिया और वो आ गए और बस हमने परफॉर्म कर लिया. But मैंने एक one fine day I woke up and I said I'm going to make a show and I want authorship of it. I want people to say that Fatima directed this and this is her work. So I just मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड है इंजर, उनकी अम्मी बहुत, उनकी एक बिल्डिंग है डिफेंस में, तो मैंने उनसे बेग किया. मैंने कहा आंटी प्लीज़ बस 30 दिन के लिए दे दें. उनका योगा स्टूडियो था. दिस वाज हर योगा स्टूडियो. वी नीडेड फॉर रिहर्सल्स, राइट?
तो ये उनका मैं भी सोची थी 30 दिन कौन सा शो चलता है, बट नाउ इट हिट्स मी कि आपको रिहर्सल के लिए मैंने कहा अपना स्टूडियो दे दें प्लीज़। तो मैं बस 30 दिन रिहर्सल करके तो हम चले जाएंगे। और उस वक्त तो खैर वो बिल्कुल खाली था, उसका कुछ भी नहीं था। तो फिर उसके बाद 30 दिन हो गए, शो हो गया हमारा, बहुत अच्छा हुआ। इट वाज हाउसफुल, आई वाजंट एक्सपेक्ट बिकॉज दैट उस वक्त ना इंस्टाग्राम इतना बिग नहीं था, दिस वाज वेरी न्यू, लाइक आई वाज सेइंग कि बिल्कुल नया नया शुरू किया हुआ था। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग आ जाएंगे देखने के लिए। तो फिर देन आई वाज लाइक ओके दिस इज़ समथिंग आई कैन डू इन फ्यूचर ऑल्सो। तो फिर बस मेरे आंटी को कहा कि बस अब ये मेरा ही है स्टूडियो, अब सो दैट्स बेथ, ये वो बेथ है जो ओके ये कहानी है बेथ की। ओके, तो जब आपने स्टार्ट किया पेरेंट्स की तरफ से आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी? दे वर ओके? अच्छा, मेरी अम्मा तो ऐसे दिल में बहुत एंजॉय करती हैं कि मैं नाचूं गाऊं, यू नो सिंगिंग और डांसिंग उनको बहुत अच्छा लगता है। अब्बा मेरे बहुत ओपन माइंडेड आदमी हैं, वो आर्टिस्ट हैं खुद भी, ही इज़ एन अमेजिंग पेंटर, ही हैज़ द मोस्ट यू नो उनके जैसी पेंटिंग मैंने आज तक किसी को नहीं करते हुए देखा। लेकिन बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर, ही वॉज ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी एंड आई अंडरस्टूड दैट। Even when I was younger, even in my teenage, I understood where it was coming from. उनको बस ये होता था कि इसको कोई हार्म ना कर दे या इसको कोई, और ये भी नहीं फिज़िकल हार्म भी नहीं, उनको मेरे इमोशनल हार्म से भी बहुत इशू होता है कि मेरी बच्ची को किसी ने कुछ कह दिया ऐसी की तैसी, और वो पैशनेटली इस बात को फॉलो करते हैं कि मेरी बेटी का नहीं, मेंटल हेल्थ हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। सो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड आउट ही फेल्ट, ही वुड टेल मी कि भाई बेटा देख लो, बिकॉज आगे आपको नहीं पता, लोग कहते बातें कहते हैं, एंड देन बीइंग इन द पब्लिक आई यू आर नॉट, कि मुझे कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं है ज़िंदगी में अभी तक। मैं बताऊँ, मैंने कोई हेट फेस नहीं की है, पता अल्लाह करे आगे ना ही हो, बट बिकॉज आई इट वॉज सो सिक्योर एट होम, बिकॉज माई फादर हैड सच स्वीट words to say to me at all times. The way he talks to me, you should see it. वो इतनी मीठी ज़बान मेरे साथ इस्तेमाल करते थे। तो फिर मुझे उनको भी ये था ना कि she has never seen anything outside world, उसने इतना देखा नहीं है, तो वो उस लिहाज से प्रोटेक्टिव थे कि you know कुछ हो ना जाए, कोई कुछ कह ना दे। एंड देन ऑब्वियसली यू नो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फॉर आवर पेरेंट्स, देयर जनरेशन, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। हमारा यू नो हमारी आंखें बदल चुकी हैं उसके लिए, लेकिन उनका सेम था कि अरे कोई उठा के ले जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, अरे कोई गाड़ी में कुछ हो जाएगा, कभी पता नहीं क्या क्या सोचते हैं वो। सो दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैड, बट देन ही सॉ दैट आई वाज़न्ट गोइंग टू स्टॉप, एंड और मैं डिसेंट तरीके से जो मेरे वैल्यू सिस्टम पे ठीक था, उनका वैल्यू सिस्टम और मेरा वैल्यू सिस्टम फ़र्क है, लेकिन जो मेरा वैल्यू सिस्टम पे मुझे ठीक लगता था मैं वो कर रही थी, और मैं कन्विक्शन के साथ रुके बगैर कर रही थी, एंड दैट्स हाउ इट्स ऑलवेज बिन, एंड आई थिंक ओवर टाइम ही हैज़ रियली कम टू रिस्पेक्ट इट। आई एम श्योर। या अब तो आपके इतने बड़े बड़े शोज होते हैं, अब तो बड़े प्राउड होंगे। आई एम श्योर। अभी तक उन्होंने देखा नहीं है। अच्छा, अभी तक आई नहीं है? अभी तक उन्होंने देखा नहीं है। आई एम एक्चुअली पुटिंग अप अ शो इन अ फ्यू मंथ्स, इट्स कॉल्ड फॉर फादर्स एंड डॉटर्स, एंड दैट इज फॉर माय फादर, so I'm curating it only so my dad can come see. That's so sweet, माशाल्लाह से। एक थॉट तो डेफिनेटली ये जहन में चल रही होगी, लोग क्या कहेंगे, और ये कि ये फाइनेंशियली वायबल होगा नहीं होगा, ये ख्यालात को कैसे आपने डील किया? अच्छा, मैं आपको ये जो फाइनेंशियली वाली बात है इससे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, मुझे बहुत बुरा लगता है कहते हुए, और मुझे बहुत गिल्ट होती है कहते हुए, लेकिन आई डू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज। ओके, सो दिस इज़ नॉट माई ब्रेड एंड बटर। ठीक है। एंड इवन इफ आई डोंट वर्क, आई हैव नेवर हैड टू वरी अबाउट बिल्स। सो दैट्स, ये जो एक चीज़ है ना, ये मैं समझती, मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं बेस्ट पर्सन हूँ, बिकॉज़ मुझे कभी वो मसला हुआ नहीं, और ना मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल आया। मैं अपने शौक़ से, अपने दिल के लिए करती हूँ जो करती हूँ, और आगे भी उसी तरह करूँगी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बिकॉज़ मेरे पास प्रिविलेज है और मैं काम कर सकती हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए भी काम कर लूँ जो जिनके पास नहीं है प्रिविलेज, जो नहीं कर सकते इतने यू नो, जिन्होंने बिल्स पे करने हैं। So I really try very, very hard to not use my